everyone. Ahana, Amar, Adil. Yes, sir. ओके ओके ओके। एक्चुअली कैसे ना आवाज़ नहीं आती ना इसमें, किसी की आवाज़ अगर नहीं आई तो फिर मतलब ऐसा लगता है The कि lecture पता was not conducted. पार्डन। The lecture was not taken by Rihal ma'am. She did not took the lecture. ओके 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 ओके। आई थिंक कॉज ऑफ एनी टेक्निकल इशू शी डिडंट टेक took the lecture. It's okay. So this lecture will happen. Okay. Only 34 students are there. Where are others? Any other I log? Okay, just leave the matter. We'll start with the session. Okay. So in the last session, what is this? Okay. In the last session, we started with the multiplexing, and before that, we started with the topic that is signal propagation. In signal propagation, we saw the different ranges also, and how the signal is getting propagated. Okay, so for propagating the signal, you at least you require two entities. One is your sender, and second is your receiver. So in order to exchange the data, you need to propagate the signal. Okay, so when one will propagate the signal to others, so it will go in the form of signals. Okay, and they have to travel via wire or wireless. Okay, any medium would be feasible. As you know, we have a guided transmission media and unguided transmission medium. Okay, after that, transmission range and detection range, interference range, these different situation or impact of the signals when it travels across the different kind of areas. Okay, so shadowing, reflection, refraction, scattering, diffraction may happen frequently. Okay, now comes to the next topic, that is multiplexing. This is the topic of today's session. Okay, so we'll try to cover the multiplexing. Actually, we have already started with the multiplexing and why and what are the different multiplexing possible in wireless communication. So we'll try to cover, and we will cover this topic by today itself. Okay, so we can complete the first chapter by today. Okay, let us again start with this multiplexing topic, because this is very simple and we just need to see the four types. Okay, there we go. So basically, we took one example for understanding the multiplexing topic is that we are having a highway. Okay, so highway with several lanes. We took this example as a second example, but I'm taking it as a first because आपका जो मल्टीप्लेक्स थिएटर वाला है तो वो थोड़ा सा ऑड एग्जांपल लगता है. सो वी ऑलवेज ट्राई टू टेक this kind of example like highways with several lanes, so that many user, that is car driver, will use the same medium so that it can go from one point to another point. Okay, and with hopefully no interference or minimum interference. Okay, so with the help of your multiplexing, this is nothing but a fundamental mechanism in communication system, but also in everyday life also. Okay, and after that we took another example of highway. We took that one example, and this is possible due to the provision of several lanes, because if we are going to use the same medium, then we must have to provide different kind of lanes. If we take the example of highway. Okay, and in addition different cars use the same medium. ये सारे example हम लोगों ने कर लिए थे. Okay, so थोड़ा आगे बढ़ते हैं directly. So we just understand about the multiplexing. In that multiplexing, what is being done? Multiple signals are trying to share the same medium. Multiple signals are trying to share the same medium. Okay, when it will try to share the same medium, then we must have to manage these signal in such a way that there will not be any interference or minimum interference, and with maximum medium utilization होना चाहिए. Okay, so in this regard, multiplexing is possible in wireless communication. It can be carried out with the help of four dimensions we saw in the yesterday's lecture. That is space division multiplexing, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो थोड़ा सा हम लोग इसको फटाफट देखते चलते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार इसका पूछता है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड व्हाट इज स्पेस डिवीजन एंड व्हाट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो सारे के सारे एक साथ में तो नहीं पूछेगा.
So for wireless communication, multiplexing is carried out in four dimension, that is space, time, frequency, and code. Okay, so the task of multiplexing is to assign space, time, frequency, and code, these four parameters, to each communication channel with minimum interference or no interference and maximum medium utilization. So we saw this definition for multiplexing, and we also know that for the communication to take place or communication to establish, we need two entities at least. Okay, they are always concerned with the sender and receiver. Okay, who wants to exchange the data. So if they are trying to exchange the data, they are trying to share the data, then there must be sender and receiver. So without sender and receiver, yeah, without one of the entity, we cannot establish the communication, or we cannot associate it. Okay, coming to the next topic, that is the first type, that is space division multiplexing. As we have already seen that in space division multiplexing, actually I have one more diagram for the space division multiplexing. I will try to share that diagram with you people. Space division multiplexing. This is the diagram from which you will understand this thing very clearly. So this is the space division multiplexing, in which you will find there are number of signals going. Okay, we have number of actually these are the signals which are using these path. Okay, actually, so basically I want to say, so this is the whole space. It was, for example, ये आपकी आपका आपका highway है. The same example we took in the earlier session only, that this is our highway, and this your highway has been divided into four five lanes. Okay, so this is your lane number one, lane number two, lane number three, lane number four, and lane number five. Okay, so a highway of one side is having five lanes. It is possible that any of the highways having five lanes. Okay, so you can consider those lanes as a signal, as a path. Okay, as a space. Okay, this is space one, space two, space three, space four, and space five. Okay, so you have divided your medium. You can imagine, you can consider that, you can consider that you are sorry, मेरा लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है देखो. So I'll take this one, ये अच्छी रहेगी. हाँ, so this is my highway. यहाँ से मेरा हाईवे है. ओके, मैं इसको थोड़ा वर्टिकली, मैं इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली ले रहा हूँ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ओके, सो दिस इज योर होल स्पेस. ओके, सॉरी, ये इसको नहीं लेना चाहिए. सो ये मेरा हाईवे. ओके, सो दिस इज माय स्पेस, एंड दिस हाईवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेन्स. ओके, मैंने इसको लेन में डिवाइड किया. ये ओके, लेन वन, दिस इज लेन टू, and this is lane 3, and this is lane 4. Okay, so lane number 1, lane number 2, lane number 1, lane number 2, this is lane number 3, and this is lane number 4. Okay, so I have 4 lanes at my highway. Okay, in the same way, in multiplexing, your data, sorry, your space, your space parameter, your space dimension is divided into 4 spaces. Okay, तो फोर सेक्शन में डिवाइड किया, दैट इज स्पेस वन, स्पेस टू, स्पेस थ्री और स्पेस फोर. ओके, so this is at the center side, and this is at the receiver side. Always try to consider these two entities while you are communicating with two entities. Okay, so these two entities are nothing but your sender and your receiver. Okay. So at the center side, what will happen? Okay, if we have a signal one. Okay, so if your sender is sending one signal, so it will take this path. तो आपका जो signal one है, it will follow this lane one. Okay, if you have a signal two, then it will follow ये वाला path. Okay, as we saw in the yesterday's session. You have third signal, it will follow ये वाला. Okay, and so on. So it means that in space division multiplexing, the in space division multiplexing, your space is divided into multiple sections, so that multiple signals will take their path as a different medium. Okay, तो यार आपका जो मीडियम था, ये पूरा का पूरा मीडियम आपका डिवाइड हो गया, आपका मतलब पूरा स्पेस डिवाइड हो गया आपके इसमें. ठीक है, एक बार ये वाला डायग्राम समझो अभी. So yes, in space division multiplexing, the space is divided into multiple sections. Okay, multiple lanes. Okay, multiple spaces, so that your signal, see here, your signal 1 is traveling from this lane, your signal 2 is traveling from this lane, your signal 3 is traveling from this lane, and 4 and 5 and all that. Okay,
This happens in the multiplexing, that is in the space division multiplexing. Okay, if honestly if I will tell you that in multiplexing जो आप लोगों ने डिजिटल आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक कौन सा सब्जेक्ट था आपका, DLDA था। आई होप वो आई थिंक हम लोग मतलब आप लोग के बैचेस मेरे पास नहीं थे शायद, तो ओके। सो इन मल्टीप्लेक्सिंग व्हाट हैपन, आपके 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 पास में क्या होता था, ये आपके फॉर एग्जांपल ये आपके मीडियम्स हैं। ओके, ये आपका यहाँ 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 पर आपका सेंडर है और यहाँ पर आपका रिसीवर है। तो बेसिकली क्या होता था, वी यूज टू से इट एज अ मल्टीप्लेक्सिव, दैट इज मक्स। तो मक्स क्या करता था, मल्टीपल सिग्नल्स को लेके एक सिग्नल मतलब एक वायर के थ्रू भेजता था। और यहाँ पर आपका एक मॉड्यूल होता था रिसीवर साइड में, वी कॉल्ड इज द डी मक्स। ओके, तो उसको हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर बोलते थे। ओके, सो दैट इज द मल्टीप्लेक्सर एंड दैट इज द and it is the demultiplexer, so it is called as mux, it is the demux। आई थिंक आपको याद होगा ये चीज। तो दिस इज मक्स एंड दिस इज demux। तो demux क्या करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करके उसमें से जितने भी सिग्नल रहेंगे अलग अलग, उसको क्या करेगा, demux करेगा। यहाँ पर मिक्सिंग होंगी, दैट इज मिक्सिंग, यहाँ पर डीमिक्सिंग। ओके, सो दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दी मल्टीप्लेक्सिंग। सो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे। ओके, सो इन स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अब स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, सो हियर व्हाट वी हैव डन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर होल स्पेस, योर होल मीडियम हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल चैनल्स। ओके, बिकॉज यहाँ पर स्पेस डिवीजन है, स्पेस का डिवीजन है। तो यहाँ पर आपके जो चैनल्स थे, चैनल्स को हम लोगों ने नाम दे दिए K1, K2, K3, K4, K5, K6। ओके, सो दीज आर दी मल्टीपल ऐसे मतलब चैनल्स के नाम दिए। सो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो यही है। फॉर एग्जांपल हियर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू S1 space, S2 space, S3, and these spaces are represented via circles indicating the interference rate। Okay, and the separation of the different channels achieved, we can say। So from K1 to K3 can be mapped onto these three spaces S1 to S3। तो आपके बाद आपके आपके जो तीन चैनल्स है, तो तीन चैनल को हम लोग यहाँ पर फिट कर सकते हैं। K1 को S1 पे फिट कर सकते हैं, K2 को S2 में फिट कर सकते हैं, K3 को S3 में फिट कर सकते हैं। सो दैट आपके जो चैनल्स है वो पर्टिकुलर एक स्पेस में आ जाए। K2 चैनल आपका S2 स्पेस में आ जाए और K3 चैनल आपके S3 स्पेस में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल इफ सिग्नल वांट्स टू कम्युनिकेट, ओके, इफ सिग्नल 1 को अगर जाना है, if signal 1 wants to transmit or signal 1 wants to communicate, अगर जाना है उसको ट्रैवल करना है, then it will be assigned to K1, okay, which is situated at the S1। okay, अगर सिग्नल 2 को ट्रैवल करना है, then it will take the K2 channel। okay, it will follow the K2 channel which is situated at the S2। in the same way we have K3 which is situated on the S3 channel, sorry S3 space। ये हमारा जो थर्ड चैनल है वो S3 स्पेस पर सिचुएटेड है, जहाँ से आपके सिग्नल जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे दिस कैन बी एक्सप्लेन। ओके, ज़्यादा इसके डीप में मतलब मैं जाऊँगा नहीं, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। सिंपली आपके जो स्पेस है उसको डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें चैनल्स को असाइन करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर आपके मल्टीपल चैनल्स हैं, चैनल्स के आई। ओके, सो यू मे हैव नंबर ऑफ चैनल्स, सो दोज चैनल्स आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट स्पेस। जितने भी स्पेस में आप लोग डिवाइड करेंगे, उतने स्पेस को इम्प्लीमेंट करके, उतने स्पेस पर इम्प्लीमेंट करने के बाद में आप उस सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे। ओके, तो इन द स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग व्हाट हैपेंस, we have a multiplexing of space। okay, we have a division of space and then we will transmit the signal via different channel which are situated on different spaces। okay, so that's all about the space division multiplexing। सेकेंड है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, यहाँ पर आपके जो डिवाइडेशन हो रहा है वो आपके फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। अब जैसे ये डायग्राम को देखने के बाद में आई विल शो वन मोर डायग्राम टू यू, FDM, that is frequency division multiplexing। okay, now you will find that आप तो हमारा टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे जो हमारे ग्राफ है, उसमें से जो फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट है इट हैज बीन डिवाइडेड, मतलब the whole frequency whatever was allotted for communication, that frequency has been divided into multiple frequencies। okay, देखो बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा बस एक एक करके एक एक वर्ड को खाली आप थोड़ा सा रिमेंबर करते रहो। ओके, सो व्हाट हैपन इन द स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इन स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वी हैव डिवाइडेड द स्पेस, दैट्स अ सिंपल वर्ड। ओके, तो हमने स्पेस को डिवाइड किया, हर स्पेस के ऊपर हम लोगों ने एक चैनल को फिक्स किया
और वो चैनल के थ्रू हमारा डेटा ट्रैवल करेगा, हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा. दैट्स ऑल फॉर द SDN. ओके, द फर्स्ट वन. The second one is frequency division multiplexing. So what happened in the frequency division multiplexing? In this, the whole frequency, what happens in the SDN, the whole space was divided into number of section. Okay, in the frequency division multiplexing, the whole frequency, because यहाँ पर अब FDM है तो frequency पे बात आएगी. The frequency will be divided into number of frequencies, say F1, F2, F3, F4. The same diagram we saw over here. Okay, so यहाँ पर आपके पास में देखो, जो आपका C कोड है, ये T ये टाइम है, और ये आपका F. तो F को हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6. So we are imagining from the first one, that is space division multiplexing, that we are having channels K1, K2, K3, K4, K5 and K6. Okay, so here we also consider six channels. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया. से ये आपको फ्रीक्वेंसी का एरो दिख रहा है. सो आर फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी एक, सॉरी F1 frequency, this is F2 frequency, F3, F4, F5 and F6. So total I'm having 6 frequencies, and those 6 frequencies are allocated to different channels. Okay, तो हमारे पास channels है K1, K2, K3, K4, K5, 6, K6. Okay, so in this way what will happen, तो आपका समझ लो क्या होगा कि आपका जो K1 चैनल है उसके अंदर हम लोगों ने सिचुएट किया है अपनी फ्रीक्वेंसी 1, मतलब कि जो सिग्नल को हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी 1 अलॉट करेंगे, सो दैट सिग्नल विल ट्रैवल वाया फ्रीक्वेंसी 1. that signal will travel via frequency 1 थ्रू K1 चैनल. ओके, मतलब K1 चैनल के थ्रू जाएगा बट फ्रीक्वेंसी 1 पर जाएगा. ओके, so just try to understand what is being done in the frequency division multiplexing. तो बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी 1. थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, तो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी 1 चैनल. ओके, सो मेरी फ्रीक्वेंसी को जब मैंने पूरा डिवाइड ही कर दिया हूँ, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी 1, ये मेरी फ्रीक्वेंसी 2 एंड ये 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ओके, सो मैंने क्या किया, ये मैंने जो मेरी फ्रीक्वेंसी 1 थी उसको मैंने चैनल K1 पर एलोकेट किया. ओके, सो व्हाट हैपन, तो जैसे कि आप इमेजिन करोगे ना कि आप एक फॉर एग्जांपल हाईवे है, और उस हाईवे के अंदर आपने जैसे डिवाइड किया, जैसे हम लोग ने SDM का देखे, तो उसके अंदर हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया, तो हमारे 6 चैनल्स हो गए, फॉर एग्जांपल 6 लेन्स हो गई. इन द सेम वे हमारे पास में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होगी. तो अब यहाँ पर जो है ना इंटरफेरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि अगर एक दूसरे को, बिकॉज ऑल सिग्नल्स आर ट्रैवलिंग ऑन देयर ओन फ्रिक्वेंसी. ओके, सो फॉर एग्जांपल सिग्नल 1 is traveling, signal 1, just try to understand this statement. Signal 1 is traveling on frequency 1. Okay, signal 1 is traveling on frequency 1 वाया K1 चैनल. ओके, मतलब केवल चैनल के थ्रू जा रहा है फ्रीक्वेंसी 1 के ऊपर, यानी उस चैनल के अंदर, दैट इज K1 चैनल के ऊपर फ्रीक्वेंसी 1 एलोकेटेड है, और उस फ्रीक्वेंसी 1 के थ्रू S1 जा रहा है. ओके, नाउ इन द सेम वे वी हैव सिग्नल 2. we have signal 2 which is traveling with the help of frequency 2, मतलब frequency 2 पर उसको हम लोग ने डाला है, and that frequency 2 कहाँ पर situated है, आपके channel 2 पर. okay, in the same way so on. okay, so this is the frequency division multiplexing. यहाँ मैंने उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, थोड़ा सा एक लाइन रीड करते हैं. Your frequency division multiplexing describes schemes to subdivide the frequency. Okay, so here we will talk about the division of the frequency dimension into several non-overlapping frequency band. Non-overlapping. Okay, so these are the non-overlapping frequency band. So this is the frequency 1, frequency 2, frequency 3, frequency 4, frequency 5 and frequency 6. So all the frequencies are the non-overlapping band. Okay, तो ये मतलब non-overlapping मतलब कहीं overlap नहीं करेगा, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा. सिंपल. Each channel Ki is now allotted its own frequency band. Each channel Ki. Okay, so we have written Ki. Why? I की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n. ओके, सो यहाँ इस आपका चैनल K1 को हम लोगों ने अलॉट किया फ्रीक्वेंसी 1, और उस फ्रीक्वेंसी 1 पर हमारा सिग्नल जाएगा S1. ओके, इन द सेम वे each channel Ki is now allotted its own frequency band. As indicated, senders using a certain frequency band can use this band continuously. Okay, तो जब तक उसको सेंड करना है तब तक कि वो उसको यूज करे, और जब हो जाए तो फिर फ्री कर दे, so that other signals will take over this particular frequency.
Again, guard spaces are needed to avoid frequency band overlapping. Okay, now what is this guard band? Actually हमने देखा नहीं, so that's a very important question. देखो guard space आपको यहाँ पता चलेगा. The space between the interference ranges is sometimes called as the guard space. Okay, अभी interference ranges क्या होता है ये समझने की कोशिश करो, because उसके थ्रू ही आप लोग समझ पाएंगे what is guard space. Guard space basically is the space between each space. Okay, if you are talking in terms of the SDM, that is space division multiplexing. Okay, I'm telling again, if you are talking about the space division multiplexing, then your guard space is nothing but the space between the interference range. तो आपके हर space के बीच में की जो range रहेगी, जो distance रहेगा, जो gap रहेगा, जो space रहेगा, that space is called as the guard space. Okay, तो यहाँ पर SDM में देखा, उसके बाद में आते हैं आपके फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स में. अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके दो फ्रीक्वेंसी के जो बैंड हैं, जो नॉन ओवरलैपिंग बैंड है, इनके बीच में भी आपको थोड़ा सा गैप लग रहा है. ओके, इफ यू फोकस ओवर हियर, इफ यू आर सीइंग द स्लाइड, अगर आप लोग अपने दूसरे काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, तो यू विल फाइंड, मैं जहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, तो दिस इज द स्पेस विच वी हैव लेफ्ट, this is the space which we have given between the two overlapping bands. Okay, ये दो frequency के बीच में जो gap है, this is the guard space in frequency division multiplexing. Okay, so this is the guard space is the one question which is asked in the viva examination. तो याद रखो, guard space is the space between two overlapping bands, non overlapping bands. Okay, दो channels के बीच में जो space होता है, उस space को हम लोग guard space कहते हैं. Okay, समझ में आ रहा है कि खाली मैं बस बकबक किए जा रहा हूँ? एनीवन प्लीज रिप्लाई. हाँ सर, समझ रहे. ओके ओके ओके, आनंद भी है दिन सर, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू कवर दिस टॉपिक बाय टुडे इटसेल्फ, क्योंकि ये उतना ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा खींचे. तो चलो यहाँ पर वापस आते हैं. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ओके, सो इसके अंदर जो स्पेसेस है यहाँ पर वो गार्ड स्पेस आपके कहलाते हैं. हम लोग इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर रहे थे. अगेन द गार्ड स्पेसेस आर नीडेड टू अवॉइड फ्रीक्वेंसी बैंड ओवरलैपिंग. ओके, if you will not leave the space, अगर दोनों के बीच में अगर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ेंगे, so what will happen, so this will happen again guard spaces are needed to avoid frequency band overlapping. तो मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ का डेटा वहाँ का डेटा यहाँ, और बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है. सो टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ गड़बड़, वी हैव टू यूज द गार्ड स्पेसेस बिटवीन द टू नॉन ओवरलैपिंग बैंड और टू चैनल्स. ओके, आगे, so these non-overlapping bands are also called as adjacent channel. Okay, adjacent channel interference. Okay, तो adjacent channel भी बोलते हैं, non-overlapping channel भी बोलेंगे. Okay, so now this scheme is used for radio station within the same region where each radio station has its own frequency. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता ही है, वो चीज़ बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं. That we used to have 93.5, 98.3 and Akashvani and other kinds of stuff. Okay, so सारे के सारे है, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी पर ही है. ओके, सारे फ्रीक्वेंसी पर है, बट ऑल आर कैप्चरिंग ऑन द, you can capture all these radio station on different frequencies. Okay, तो यहाँ पर उनका नाम दे दिया गया, नंबर दे दिया गया 98.3. तो 98.3 पे जाएंगे तो आपको वही चैनल मिलेगा, मतलब आपको वही 98.3 रेडियो मिर्ची है तो रेडियो मिर्ची ही मिलेगा. ओके, और फिर ऐसे दूसरे फ्रीक्वेंसीज पर उनको एलोकेट किया गया है. ओके, सो and this is very simple multiplexing scheme, does not need complex coordination between the sender and receiver. So it's all about the frequency division multiplexing. That's a very simple one, frequency division multiplexing. So till now we have done with the space division multiplexing, then we have frequency division multiplexing. The next one is time division multiplexing. Okay, I think हम लोगों ने कुछ 4 पैरामीटर का मेंशनिंग किए थे. वहाँ पर कितने थे, टाइम, फ्रीक्वेंसी, कोड और स्पेस. ओके, सो स्पेस हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, नाउ द टर्न इज ऑफ टाइम. सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अगेन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, सो आई होप कि आप लोग ये भी इजीली समझ जाएंगे. बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं. मैं थोड़ा सा इसका वो कम कर देता हूँ सो दैट यू विल सी द थिंग्स.
ओके, सो इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं, बिकॉज जब डायग्राम देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, एंड देन फिर रीडिंग ऑल दिस थिंग इज वेरी सिंपल फॉर अस. ओके, सो हियर यू कैन सी, if you remember the diagram of the FDM and STM, then you saw that कि आपको C वाला, F वाला, T वाला आपको हमेशा हर जगह दिखेगा. ओके, और स्पेस वाला तो आपके उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था सर्कल के थ्रू. तो यूर कोड, यूर फ्रिक्वेंसी, यूर टाइम, ये तीन पैरामीटर, ये तीन डायमेंशन के आपको एंगल, तीन उसका जो एक्सिस आपको हमेशा दिखेगा. ओके, सो अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, इफ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस डायग्राम, that is ओके. एक्चुअली जो डिस्टर्बेंस बहुत था. सो अगर आप लोगों ने ये डायग्राम ऑब्जर्व किया था, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, all the division was on the frequency axis. ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं. तो ये आपका ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, थोड़ा सा समझ के लो. दिस इज द कोड वाला एक्सिस, दिस इज द टाइम वाला एक्सिस, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस. ओके, आगे फ्लैलो वाली राइटिंग आ रही है मेरी. ओके, सो हम लोगों ने क्या डिवाइड किया था, आपके फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया था. तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी एंड ये फ्रीक्वेंसी. ओके, सो वट एवर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में आपको डिवाइड करना, दैट्स अप टू यू. ओके, सो दिस डिवीजन वाज ऑन द फ्रीक्वेंसी. नाउ द डिवीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ओके, तो आपके टाइम पे डिवीजन होगा. तो यू विल बी हैविंग द सिंगल फ्रीक्वेंसी. देखो यहाँ अभी 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 क्या होगा, अभी चलो वापस डायग्राम पे, हमारे इस पे जाते हैं पहले डायग्राम पे. So in time division multiplexing, the division will be on the time axis. Okay, देखिए ये आपका टाइम वाला यहाँ पर है. Again I'll draw the diagram, ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छे से, ठीक है. So now the division is of time. Okay, तो ये आपका टाइम का डिवीजन, टाइम का डिवीजन, टाइम का डिवीजन एंड टाइम का डिवीजन. ओके ओके, अब जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी आपके सिंगल रहेंगी. देखो अब यहाँ पर आपका जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. तो टेक्नोलॉजी, नाउ द मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन विल बी डन इन सच अ वे दैट यू विल बी हैविंग डिफरेंट टाइम स्लॉट्स. ओके, तो आपके पास में टाइम स्लॉट्स रहेंगे. तो यू कैन इमेजिन दीज टाइम स्लॉट्स, अलग अलग टाइम स्लॉट्स आप इनको कंसिडर कर सकते हैं. और फॉर ईच एंड एवरी टाइम स्लॉट यू आर हैविंग डिफरेंट चैनल्स. ओके, तो मतलब चैनल 1 के ऊपर, फॉर एग्जांपल चैनल 1 के ऊपर टाइम T1 पे मतलब के ट्रांसमिशन होगा. सो टाइम T1 पर व्हेन द 12:05 होंगे, देन द सिग्नल में ट्रैवल फ्रॉम दिस चैनल. एट टाइम 2 signal will travel from this channel and so on. Okay, so the crux is that the division is based on the time. so अलग अलग टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको हाईवे वाला एग्जांपल दिखाया था. फॉर एग्जाम्पल हाईवे नहीं है हमारा, ठीक है, हमारे पास में सिंपल रोड है. ओके, इफ आर हैविंग सिंपल रोड, और यू कैन से ओनली वन लेन रोड. ओके, एक ही लेन है, एक गाड़ी जा सकती है. जब एक गाड़ी जा रही है तो इट मीन्स यू कैन कंसिडर दिस होल एज अ टाइम. आपकी फ्रिक्वेंसी मतलब कि फ्रिक्वेंसी आपके पास में एक ही है, आपके पास में मल्टीपल फ्रिक्वेंसी नहीं है. तो ये पूरे की पूरी आपके पास में एक ही फ्रिक्वेंसी है. जस्ट यहाँ पे थोड़ा फोकस करो सब लोग. सो आपके पास में एक ही फ्रिक्वेंसी है ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी, मतलब आपके पास में एक ही रोड है. ओके, अब आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को पास करवाना है. तो गाड़ी जब पास होगी, फॉर एग्जांपल अभी 12:05 हो रहे हैं फॉर एग्जांपल. सो एट 12:05 योर कार 1 विल पास फ्रॉम वेयर. आई थिंक ये हम लोगों ने एग्जांपल पहले भी लिया था, जस्ट थोड़ा सा और ले लेते हैं. तो एट 12:05 वन कार इज पासिंग फ्रॉम दिस लोकेशन, फ्रॉम दिस पॉइंट. तो वन कार विल पास. ओके, तो एट टाइम T1 इट इज पासिंग. देन उसके बाद में एट टाइम T2 second car is passing, at time T3 third car will passing and so on. Okay, so ऐसा कुछ डिवीजन आपके टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में देखने को मिलता है. तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. A more flexible multiplexing scheme for typical mobile communication is the time division multiplexing. एक के बाद में एक कॉल आते हैं ना हमको, के साथ साथ में हम लोग मल्टीपल कॉल्स ले लेते हैं एक साथ में एक वक्त में हम लोग किसी एक से, या अगर आप बोलेंगे सर कॉन्फ्रेंस पे भी तो बात कर लेते हैं.
तो वही एक ही तो बात हो रही है, मतलब वो तो उसको हम लोग ने हब बना के साथ में बात कर रहे हैं, ओके। बट वी कैन नॉट कनेक्ट मोर देन वन कम्युनिकेशन। एक एक मतलब टाइम पे दो लोगों से अलग अलग इसमें बात करना, अलग अलग चैनल पे बात करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक से बात करते हैं, फिर उसको हम दूसरे से बात करते हैं, फिर तीसरे से बात करते हैं, सो ऑन, ओके। A more flexible multiplexing scheme for typical mobile communication is TDM, that is time division multiplexing. And here a channel क्या is given the whole bandwidth for a certain amount of time. तो देखो जो मैंने आपको बताया वो वही है। यहाँ पर आपको मतलब एक टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल एट टाइम t1, एट टाइम फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एट टाइम टी वन मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एट टाइम टी वन द होल फ्रिक्वेंसी, ये रहा आपका फ्रिक्वेंसी, द होल फ्रिक्वेंसी वॉज एलोकेटेड टू द चैनल, ओके। तो चैनल को आपके आपकी पूरी की पूरी फ्रिक्वेंसी दे दी है, कब, एट टाइम टी वन। चल भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। तो टाइम टी वन पे जितना कम्युनिकेशन करना है वो करेगा, फिर एट टाइम टू अगेन दूसरा, एंड सो ऑन, ओके। वापस आते हैं। So her channel Ki is given the whole bandwidth for a certain amount of time, that is for T1 time. That is all center use the same frequency but at different point in time. So we have different channels also, okay. आप बोलोगे सर एक साथ में कैसे बात कर सकते हैं, तो अलग अलग चैनल पे बात करेंगे। अगेन गार्ड स्पेसेस which now represent time gaps, okay. Now the guard spaces are called as the time gap because we have a division of time over here, so we call it the time gaps, and have to separate the different periods when the senders use the media. So again अगर कभी आपका ये टाइम T1 है एट 12:05 वाला, तो ये टाइम और ये वो टाइम के दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टाइम गैप, ओके। जिसको हम लोग अपने दूसरी मल्टीप्लेक्सिंग में वी यूज टू कॉल्ड इट एज अ गार्ड स्पेसेस, ओके। गार्ड स्पेसेस, ओके। यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं टाइम गैप्स, ओके। बिकॉज दो टाइम के बीच में दो मैंने जो हम लोगों ने डिवीजन किए हैं, तो दोनों टाइम के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। द स्पेस इज नॉट द करेक्ट वर्ड ओवर हियर, सो वी कॉल इट एज अ टाइम गैप, ओके। दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम का गैप होना चाहिए। Again, the guard space, okay. Again, the guard spaces which now represent the time gaps have to separate the different periods when the sender use the medium. तो भाई जब सेंडर यूज करेगा तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम रख देंगे, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओके। नहीं तो फिर यहाँ की बात अभी हो ही नहीं और डायरेक्ट दूसरी बात चालू करती है, दूसरा चैनल का कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। In our highway example that we took in the starting only, this would refers to the gap between the two cars. So मैंने आपको वही एग्जांपल दिया अभी, तो अगर आप लोग समझेंगे तो ये जो आपकी एक कार जा रही है फॉर एग्जांपल, यार वो पीछे आते हैं वापस से। सो ये आपका हाईवे, थोड़ा सा मैं क्रॉस बना रहा हूँ क्योंकि वो क्रॉस हो गया अभी। सो दिस इज द हाईवे, हाईवे के अंदर आपकी कार जा रही है, ये आपकी कार है, बहुत टेढ़ी बहुत स्टाइलिश कार है, ये आपकी कार जा रही है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी कार जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ दूसरी कार आपकी पीछे से जा रही है, तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। क्या बोलते हैं भाई उसको, सुरक्षित अंतर ठेवा, ओके, कीप सेफ डिस्टेंस। So yeah, that distance has to be kept safe so that there will not be any interference, there will not be any kind of accident. Otherwise फिर मारेंगे, धक्का मारेंगे तो फिर वो भर के लेगा, okay. So in a highway example this would refers to the gap between two cars, okay. So it happens in the time division multiplexing. If two transmission overlap in time, this is called co-channel interference, okay. अगर होता है दोनों कार अगर टकराती है, if there is a collision between these two cars, then we call it, in the communication terminology we used to say that this is the co-channel interference, co-channel interference. If two transmission overlap, if two cars overlap, then we call it as an accident, okay. But if two transmission, so this is the transmission one, ये आपका सिग्नल वन जा रहा है, ये आपका सिग्नल टू जा रहा है, मतलब आपका सेकंड ट्रांसमिशन जा रहा है। आई यूज्ड टू से ट्रांसमिशन वन एंड ट्रांसमिशन टू, ओके। सो इफ टू ट्रांसमिशन ओवरलैप्स इन टाइम, दिस इज कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस। तो अगर ये गाड़ी इसने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धक्का लग जाएगा और कोलिजन हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, ओके। टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट सेंडर इज नेसेसरी। तो पीछे वाला क्या करे उसके लिए, it the transmission one, that is the car one, must take necessary precaution for that. पीछे से एक लाइट, पीछे एक रेड लाइट लगा है, यहाँ पे रेड लाइट लगा है,
जैसे ही ब्रेक मारेगा तो वो लाइट जलना चाहिए, ओके, जो हमारे पास में है ऑलरेडी, ओके। और उसके अलावा फिर ये वाला क्या करे प्रॉपरली से सिंक्रोनाइजेशन के लिए, व्हाट इट विल डू, द ट्रांजिशन टू या फिर दैट द कार टू विल डू व्हाट, वो क्या करेगा, हॉर्न बजाएगा। तो हॉर्न बजाएगा तो ये क्या करेगा, डिस्टेंस को लगेगा कि पीछे कोई आ रहा है, ओके। So this is the type of synchronization we used to have in the highway on the highway, okay. But in case of this transmission, हमको क्या करना पड़ेगा, precise synchronization between different sender is necessary। तो ये इनको जो है ना सेंड करने के लिए यहाँ पर प्रॉपरली हमको सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर्स होना चाहिए, ओके। So for our receiver tuning is to into a sender that this does not this involve this frequency। चलो just leave this point, okay। So you understand about this point कि भाई ये क्या है, that is time division multiplexing। In time division multiplexing we used to have the division of time, okay, we used to have the division of time and the whole frequency is allocated at once, okay, so that the sender whatever sender wants to transmit ले भाई transmit कर ले, okay। Again when we are doing the division of the time, then we must take care of the gap, which is also called as the guard spaces in other case of multiplexing, but in time division multiplexing we call it as a time gap, okay। अगर वो gaps नहीं रखेंगे तो फिर accident हो जाएगा, okay। And if two transmission overlaps in time, this is called the co-channel interference, okay। चलो भाई ये वाला तो हो गया, द लास्ट वाला है फॉरन एक पेज का देख लेते हैं। सो दिस इज अ कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये बहुत ही इसको बोलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वी कैन से बहुत ही सिक्योरिटी वाला फीचर है, दैट इज कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। द लास्ट पॉइंट, द लास्ट डायमेंशन मल्टीप्लेक्सिंग। So we were having 4 dimension now, time, frequency, space and code. So code division multiplexing is the last dimension. So CDM, that is code division multiplexing, is a relatively new scheme in commercial communication scheme। तो you will find कि ये वाला कोड वाला हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल है उसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ओके। पहले यूज होता था मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए ड्यू टू दी सिक्योरिटी फीचर्स, ओके। अभी इसको हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज करते हैं। Air channel KIs use the same frequency at the same time for transmission, okay। Now remember the things। अभी आपके कोड डिवीजन में क्या हो रहा है, कोड डिवीजन के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी इज यूजिंग एट वंस, ओके। तो मतलब आपकी सारी फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे यूज हो रही है, बट विच आर बीइंग यूज बाय डिफरेंट कोड, ओके। अलग अलग कोड बना के रखें सो दैट के, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर एक बंदा है जिसको खाली इंग्लिश समझती है, ओके, उसको इंग्लिश समझती है, विच इज एट द सेंटर साइड, ओके। एक और बंदा है जिसको स्पेनिश समझती है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए। तो ये बंदे को इंग्लिश समझती है और ये बंदे को स्पेनिश समझती है, थोड़ा सा बहुत रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जब आपके, क्योंकि जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, सॉरी चोरी जा रही है, ओके। सो कंसिडर दिस इज योर चैनल, ओके। यहाँ पर आपकी सारी फ्रिक्वेंसी, ये सबकी सारी फ्रिक्वेंसी, ये टोटल की टोटल फ्रिक्वेंसी एक साथ में एलोकेट कर दी। नाउ व्हाट वी हैव डन, हम लोग जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट कोड्स के थ्रू कर रहे हैं, ओके। सो डिफरेंट कोड्स, फॉर एग्जांपल if the Spanish person will send a signal, then वो आपको कुछ एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको ऑरेंज कलर में कोड आपको दिखेगा, ठीक है। So one the signal which is going from the sender who know the Spanish only, तो उसका ऑरेंज कलर का कोड है, ओके। तो यहाँ पर जो बंदा है, जो रिसीव करने के लिए बंदा है, जो कि यहाँ पर स्पेनिश वाला भी बैठा है, यहाँ पर इंग्लिश वाला भी बैठा है, और यहाँ पर आपका एक और बंदा जो बैठा है जो अरबिक वगैरह कुछ और समझता है, ओके। सो दोज ऑल द पीपल हु आर सिटिंग एट द रिसीवर साइड, जो ऑरेंज कलर वाला है तो ये स्पेनिश वाला है, तो ये जो आपका रिसीवर है, द रिसीवर विल अंडरस्टैंड द सिग्नल विच इज कमिंग फ्रॉम द सेंडर having orange code, just giving an example, the orange code, so this orange code is for me only, okay। So for multiple user, because multiplexing नाम ही इसका है इंग्लिश, मल्टीपल जो मीडियम है, मल्टीपल चैनल्स को क्या करना है, आपको हैंडल करना है, ओके। सो वी आर हैविंग दिस मल्टीपल यूजर इन दिस केस, सो वी आर यूजिंग स्पेसिफिक कोड, वी आर यूजिंग दिस स्पेसिफिक कोड। तो यहाँ से आपका ऑरेंज कोड जा रहा है, यहाँ से आपका एक
ग्रीन कोड जा रहा है, सो ग्रीन कोड है तो मतलब इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश वाला रिसीव करेगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन हैव स्पेसिफिक कोड इन द whole frequency allotment. We use different code in order to have the security of the communication. Okay, तो इसकी इसके बारे में डेप्थ में तो नहीं है, लेकिन जस्ट इतना है कि वी यूज स्पेसिफिक कोड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोड सो दैट the receiver will understand its communication. Receiver will receive its signal and understand the communication. थोड़ा सा वापस इसको रीड करते हैं. फर्स्ट टाइम ये तो हम लोगों ने देख लिया. द चैनल क्या यूज द सेम फ्रिक्वेंसी एट द सेम टाइम फॉर ट्रांसमिशन. भाई फ्रिक्वेंसी तो पूरी की पूरी यूज हो रही है, बट वी आर यूजिंग डिफरेंट कोड्स. ओके, बिकॉज देयर इज अ डिवीजन ऑफ कोड, तो हम लोग यहाँ पर कोड यूज कर रहे हैं. देन सेपरेशन इज नाउ अचीव्ड बाय असाइनिंग ईच चैनल इट्स ओन कोड. देखो भाई मैंने बोला आपको, तो ईच हर चैनल को एक अलग कोड असाइन करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल K1, सॉरी दिस इज चैनल K1, दिस इज चैनल K2, दिस इज K3 एंड सो ऑन. ओके, सो वी आर हैविंग डिफरेंट चैनल्स. सो हम लोगों ने ये कोड किसी के लिए रखा है. फॉर एग्जांपल जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ये कोड के थ्रू अपने रिसीवर्स अपने सिग्नल्स को रिसीव करेगा. ओके, फ्रॉम चैनल 2 ओनली इनकम टैक्स पीपल विल अंडरस्टैंड, मतलब कि विल रिसीव देयर सिग्नल. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ओके, तो यहाँ पर यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपने सिग्नल्स रिसीव करेंगे, यहाँ से इनकम टैक्स वाले अपने अपने रिसीव करेंगे, यहाँ से कुछ ह्यूमन रिसोर्स वाले अपने सिग्नल्स रिसीव करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ डिफरेंट डोमेन्स इन द गवर्नमेंट. तो ये अलग अलग कोड्स हम लोगों ने स्पेसिफिक रखे हैं सो दैट द रिसीवर विल रिसीव कोड ऑन पर्टिकुलर channel only. Okay, so we have multiple channel, as we know that we have a KI, that is a channel having multiple, that is 6 channel, K1, K2, K3, K4, K5, K6. On the code axis, you can see this in the code axis, we have multiple code so that the things will be received by the receiver in a particular or a specific code only. Okay, the main advantage of the CDM, I know the time is over, 5 minutes I have exceeded, but this is the last slide. Okay, so the main advantage of CDM for wireless transmission is that it gives good protection against interference. तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी है सिग्नल जो रिसीवर, वो ये चैनल पर ही ट्रैवल करेंगे, दूसरों का टेंशन नहीं है. इनकम टैक्स के जो सिग्नल्स है वो यहाँ से सेंड होंगे, यहाँ से रिसीव होंगे एंड सो ऑन. HRD वाले ह्यूमन रिसोर्स वालों के सिग्नल्स यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं एंड सो ऑन. Okay, so all the department are having different codes so that they can gain the more security for their communication. It gives good protection. ये मैं आपको जो 2-3 पॉइंट बता रहे की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है. It gives good protection against interference. Okay, it gives good protection against interference नहीं होगा, एक तो ये बोल रहा है. And tapping, सिग्नल्स की टैपिंग होती है. ओके, आपके सिग्नल सिर्फ जो सिग्नल्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, if at any point of time if your signal is traveling from any place, then this signals can be tapped also. Okay, इसको हम लोग चैनल टैपिंग भी बोलते हैं, सिग्नल्स टैपिंग भी बोलते हैं. ओके, so that tapping is nothing but capturing the part of the signal, capturing or stealing the information of the signal from the waves. Okay, जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं आपके उसमें से इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, ये आपके सिग्नल्स टैपिंग कहलाता है. ओके, and then in this CDM, that is code division multiplexing, different codes have to be assigned. So we have assigned different codes. For example, हम लोगों ने इसको एक कोड असाइन कर दिया P, इसको I, इसको H and so on. The main disadvantage of this scheme is the relatively high complexity of the receiver. तो यहाँ पर रिसीवर के साइड के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है. Sorry. So receiver side में complexity high है because we have divided the code, we have maintained different code for different receiving signals of different domains. Okay, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है आपके कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, बट लेकिन इसके एडवांटेज भी तो है कि यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा मिल रही है. देयर इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टैपिंग. ओके, देयर इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटरफेरेंस. So we have all these advantage also and one of the disadvantage also. Okay, so this is all about the code division multiplexing. All the 4 dimensions are very simple. You read it once, okay, you will get it what are these multiplexing is saying all about. So today what we have done, just let me recap in 1 minute.
that we have started with the multiplexing. We have started with multiplexing, introduction part, then example, then different multiplexing. We have time, space, frequency, and code. And the objective of this multiplexing is to minimize the interference and maximize the medium utilization. Okay. And in multiplexing, we are having two main entities like sender and receiver who are exchanging the data, who are sharing the information, who are communicating with themselves. We must have the sender and receiver for this multiplexing to be happen. Okay. Then we have space division multiplexing, plexing where we have represented the space via circles indicating interference field. The gap between the space between the two spaces in the space division multiplexing is called as guard space. Okay. We have divided the space into multiple spaces, that is S1, S2, S3. अब इसमें दिखाने को और था नहीं, वरना S3, S4, S5, S6 भी दिखाते. ओके. तो K1, K2, K3, K4, K5, K6, तो यहाँ पर 6 चैनल दिखाए तो 6 स्पेसेस भी दिखा सकते थे, लेकिन अब इसमें जगह नहीं थी करके 3 ही दिखाए हैं. ओके. सो वी हैव 6 स्पेसेस एंड वी कैन एलोकेट दी 6 स्पेसेस के ऊपर हम लोग 6 चैनल को रख के, इन्हें 6 चैनल पे 6 स्पेसेस को रख के वी कैन कम्युनिकेट. ओके. और वी कैन डू द कम्युनिकेशन. Then frequency division multiplexing, on the frequency is divided into multiple bands. Okay. And the gap between each band, non-overlapping band, is called as the क्या बोलते हैं इसको, गार्ड स्पेस. गार्ड स्पेस नहीं बोलते, यहाँ पर कुछ और बोलते हैं. एनीवन? कहीं तो हम लोगों ने पढ़े, भूल गए. बहरहाल, तो यहाँ पर मैंने आपको तो ये करके बताया था. सो वी हैव टू मेंटेन द स्पेस बिटवीन ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी बैंड. ओके. तो यहाँ पर हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस होगा और फिर प्रॉब्लम होगी. ओके. देन वी हैव टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज इट इज. नाउ द डिवीजन करने की बारी किसकी है अभी? नाउ डिवीजन अभी होगा टाइम का. ओके. सो टाइम डिवीजन विल बी डन. और टाइम डिवीजन के बाद में अगर कभी ओवरलैपिंग होती है तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द को चैनल इंटरफेरेंस written in the board. Then last is code division multiplexing, and this is all about the multiplexing. Okay. So thank you for listening, and it was all about the multiplexing topic, and here we will cover the first chapter, that is introduction to mobile computing. Okay. Thank you so much. Let me stop the recording first, then I will share the attendance. Namira Sheikh, are you present? Namira Sheikh.